Welcome students to the second topic of the first lesson, economics development. In the previous class, we discussed about the meaning of development, their promises, notions or goals of various people, income and other goals, that means material and non-material goods. This class, we will discuss about the national development and we will compare various countries based on development. Also, we will assess the criteria of World Bank. Right? So let us start with the national development. The individuals seek different goals and their motive of national development is likely to be different. While planning for national development, this should be kept in the mind that in a country, different people or different citizens having different and conflicting notion on development. डेवलपमेंट के ऊपर हर एक आदमी का अलग अलग आइडियाज है, नोशंस है, आइडियाज. Right? For example, a farmer of India, and according to the farmer of India, development of the country means in some other way. Whereas a trader, they want the development of country in such a way. Doctors of the country, they will think about the development of a country in totally another way. We teachers also are thinking also about development, totally different from the farmers or some other people. So every person is having their own notion, idea about the national development. So what will happen? Under national development, priority is given to those goals which benefit a large number of people. Right? ज्यादा बेनिफिट जिसको मिलेगा उसको उसी तरह उसी गोल की तरह हम लोग मूव करना चाहिए. जब कंट्री का डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा तो उसने ऐसा बोल दिया, उसको इच्छा नहीं है, इसको इच्छा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. हम भी ऐसे ही है. अरे फिल्म देखने जाएगा तो एक आदमी बोलेंगे वहां जाओ, एक आदमी बोले यहाँ जाओ, लेकिन हम देखेंगे पूरा ज्यादा लोग कहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं, हम तो वहीं जाएंगे. तो सेम होना चाहिए. दैट इज द सच्चा रियलिटी. ऐसा ही है, ऐसे करना चाहिए. एंड वी आर कंपेयरिंग द कंट्रीज ऑल्सो. ऑल कंट्रीज आर नॉट सिमिलर. इवन आपको विद इन आवर कंट्री नंबर ऑफ स्टेट्स, these all the states are similar? No. So all over the world number of countries are there. Countries are also not similar, isn't it? So countries को हम जो कंपेयर करेंगे based on the development, right? On the base of development countries, we categorize these countries into developed, developing and underdeveloped. Right? Developed, developing, underdeveloped. डेवलपिंग कंट्रीज, सॉरी डेवलप्ड कंट्रीज सबको पता है, यूके, यूएस, जापान, दीज आर द डेवलप्ड कंट्रीज. इंडिया एंड श्रीलंका, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री. दीज आर द डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलप होते जा रहे हैं. एंड आई एम सो सॉरी, व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, माय टीचर टॉट मी दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. आफ्टर सो मेनी इयर्स आई एम टीचिंग यू ऑल्सो, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. सोचो कि कहाँ पर कमी हो गई, क्या प्रॉब्लम है. थिंक अबाउट दिस. बट दिस इज नॉट आवर सब्जेक्ट, सॉरी टॉपिक नहीं है, तो लेट इट बी. लेकिन सून, आई बिलीव सून इंडिया ऑल्सो बिकम अ डेवलप्ड कंट्री. सो एनीवे, countries are divided into 3 sections: developed, developing and underdeveloped. UK and USA is example for developed country, and whereas India and Sri Lanka are considered as developing country. Mozambique and Sudan and other African countries are considered as underdeveloped countries. Right? This economic development of a country is measured on the basis of the national income or total income. Right? Country का जो रिच है, पुअर है, सब कंसिडर करते हैं कि बेस्ड ऑन द नेशनल इनकम और नेशनल इनकम, टोटल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. ये दो हैं. National income and total income, they both are same. And another is per capita income. Now you have to learn the definition of these two incomes: national income and per capita income.
National income is also called as total income. That means the national income is the income of the all residents of the country. That means all the cities of the country for a particular period. Right? तुम्हारा घर में अगर 5 लोग हैं, 500 का जो एक महीने का, एक साल का सैलरी को हम बोलेंगे, टोटल को बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम. बस सेम एज इस कंट्री का सारे सिटीजन का, सारे जितना भी हो, ऑल रेसिडेंट्स, टोटल इनकम इज नोन एज नेशनल इनकम, टोटल इनकम. राइट? एंड वी कैन से इट इज नॉट यूजफुल मेजर, क्योंकि अगर देखेगा तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक घर में आपका 50,000 रुपीज का मंथली इनकम है, एक घर में क्या बोलेंगे 60,000 का इनकम है. तो आपको पूछेंगे हाउस ए इनकम इज 50,000, हाउस बी इज इनकम 60,000, विच इज रिच? आप बोलेंगे बी इज रिच. लेकिन अंदर की तरफ जाएगा तो जो 50,000 वाले में ना ओनली 2 मेंबर्स, 60,000 वाले में ना 6 मेंबर्स. बताओ कौन रिच है? अब आप बोलेंगे सर आपका ए वाला रिच है बिकॉज उसके पास 2 ही लोग हैं, 50,000 रुपया, इनके पास 6 मेंबर्स है, 60,000 रुपीज. सो ये रिच बोलेगा ना. तो दिस इज द ड्रॉबैक. नेशनल इनकम का ड्रॉबैक सही है, isn't it? And total income will not state the average, means ये आपका जो total population, different country having different population also, so it is not a useful fact. Whereas per capita income, that we can better comparison for better option to compare the nations. Per capita income. तो वो क्या करेंगे पता है? टोटल इनकम मीन्स जीडीपी होता है. जीडीपी मीन्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इसके बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बिकॉज इट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल क्या बोलेंगे प्रोडक्शन ऑफ 3 सेक्टर्स. 3 सेक्टर्स है, आपको पता है 3 सेक्टर्स के बारे में 9 में पढ़ाया था. आपको याद है कि नहीं, आई डोंट नो. अब अभी बोलेंगे सर तो हम तो भी छोड़ के आता है सब कुछ, है ना. एनीवे मैं रिकॉल कराएंगे सेकंड चैप्टर में 3 सेक्टर्स के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी. दीज 3 सेक्टर्स का प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, दैट इज वी कैन से जीडीपी. फाइनल गुड्स का लास्ट में जो आता है वो गुड्स का जो फाइनल गुड्स का जो वैल्यू है कैलकुलेट करेंगे, दैट इज जीडीपी, टोटल जीडीपी. दैट इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन. सिंपल. टोटल जीडीपी ऑफ अ कंट्री for a particular period means per annum. Per annum means per year, right? Divided by total population is known as per capita income. So national income, per capita income दोनों का definition याद रखना. National per capita income क्या होता है? It's calculated by dividing total income of the country, that means GDP, by total population of that country for a particular year or particular period, right? Average income, इसको दूसरा नाम है average income. National income का दूसरा नाम क्या है? नेशनल इनकम, टोटल इनकम. इसका दूसरा नाम एवरेज इनकम. दिस ऑल्सो नॉट द, इट इज बेटर दैन द टोटल इनकम, बट दिस ऑल्सो नॉट सो एक्यूरेट. मीन्स आपको डिस्पैरिटीज, इसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स है. बिकॉज इसमें इसका प्रॉब्लम क्या आता है बताता हूँ. ये हाइड कर देते हैं बहुत सारी चीजें. सपोज एक फैमिली में 5 लोग हैं, 5 लोग हैं तो वहाँ बोलेंगे भाई 50,000 रुपये तुम्हारा सबका इनकम आ रहा है, और डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 5, तो एक आदमी का 10,000 रुपीज आ रहा है. एक आदमी का इनकम 10,000 रुपीज आ रहा है. लेकिन वहां पर जो एक आदमी का 10 रुपीज है इनकम, वो तो पता ही नहीं है. बाकी सबका इससे ज्यादा है. मतलब सपोज समझ लो कि 3 लोगों का आपका 30,000 रुपीज है. 10,000 30,000 है. 4th आदमी को 20,000 रुपीज है, 50 हो गया. और 5th आदमी को 0 इनकम है. लेकिन हम लोग कैलकुलेट करने के टाइम क्या होगा, 5th को भी 10,000 देना है, क्योंकि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, मतलब टोटल 50 बाई 5, लेकिन 500 तो कुछ इनकम ही नहीं है. तो इट हाइड्स द पर कैपिटा इनकम, हाइड्स द डिस्पैरिटी, और एक्चुअल दे नहीं रहे आपको. ड्रॉबैक्स है. इसके अलावा और भी होता है कि जो रिच और पुअर को क्या बोलेंगे दिखाई देता है क्लियरली. इट नेग्लेक्ट्स द, इसका ड्रॉबैक्स में अगर पूछेगा तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं. इट नेग्लेक्ट्स इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, रिचनेस एज वेल एज एक्सट्रीम पॉवर्टी. पता नहीं चलता है. एक आदमी एक्सट्रीम पॉवर्टी, उसके पास 5 पैसा भी नहीं है, इनसे पूछना पड़ेगा. 5 मेंबर में से एक आदमी के पास पैसे ही नहीं है, उनके बारे में दुनिया को पता नहीं है, राइट. सो आप बोलेंगे पर कैपिटा इनकम इज आल्सो हैविंग ड्रॉबैक्स. एक ड्रॉबैक्स है, इट्स ए नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट.
per capita income is a narrow concept of development. Then it divides the country into rich and poor, isn't it? Then आपको it neglects inequalities. जो इनकम का इनइक्वालिटी को नेगलेक्ट पता ही नहीं चलता है. ये जो 5 मेंबर्स है उसकी इनइक्वालिटी पता चला है? नहीं पता चला. घर वालों को पता है, बाहर वालों को पता नहीं है. सो इट नेगलेक्ट्स द इनइक्वालिटीज ऑफ द इनकम, रिचनेस हासिल. अच्छा एग्जाम्पल बता सकता हूँ मैं. यूएई में आपका सऊदी अरेबिया का 90% जो जीडीपी होता है ना, दैट इज विद 2% पॉपुलेशन. दे आर वेरी रिच, अल्ट्रा रिच. दैट मीन्स कंट्री का जीडीपी है बहुत, वी कैन से रिच कंट्री क्या कर सकते हैं. 90% जो आपका इनकम होता है, जीडीपी होता है, प्रोडक्शन होता है, वो आपका रिच पीपल के अंडर में है. दैट द पॉपुलेशन इज ओनली 2%. दैट मीन्स 98, बाकी रस्ट 90% आर प्रोड्यूसिंग 10%. So that is the drawback of per capita income. I hope you understood, right? And समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में देंगे इसमें तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा. मैं बोर्ड में समझा देंगे, ठीक है, डोंट वरी. और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का भी क्राइटेरिया होता है. वर्ल्ड बैंक हर साल में आपको एक रिपोर्ट देते हैं. वर्ल्ड बैंक पब्लिशेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इन एवरी ईयर. इसमें ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, बिकॉज in various book you are having the textbook, old book, some are having the very old, means बहुत पुराना 2004 का क्राइटेरिया दिया होगा, हर साल में निकाल देते हैं. सीबीएसई का आता है इकोनॉमिक्स में, आपको यू हैव टू टेक द डाटा ऑफ न्यू डाटा, मीन्स करंट डाटा लेना है. अगर आप करंट डाटा नहीं ले पाया तो बुक के अकॉर्डिंग आपको लिखो, बट यू हैव टू मेंशन द ईयर 2000. नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू अबाउट 2012 क्राइटेरिया, मीन्स 2012 का पब्लिश किया हुआ उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे. बट इन सम पीपल हैविंग द बुक 2014 का होगा, 18 का, लेटेस्ट 18 का आई विल गिव यू इन द बोर्ड, ठीक है. आफ्टरवर्ड्स द बोर्ड एक्सप्लेनेशन होगा तब मैं बोर्ड में देंगे आपको. एक क्लास बोर्ड एक्सप्लेनेशन का होगा तब मैं पूरा बोर्ड में देंगे. फिलहाल मैं आपको 2012 का देंगे. सो वेरीज होंगे, डोंट थिंक दैट सर ने गलत बोला, इस बुक में ऐसा है, ये वेरी होगा, बुक टू बुक वेरीज होंगे, बिकॉज वी हैव टू टेक द राइट वन. मीन्स इंटरनेट में से जो आज सही है अभी प्रेजेंटली जो है वो आप ले लेना. तो वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो कंपेयरिंग द कंट्रीज विच वन इज अ रिच एंड विच वन इज अ पुअर. वर्ल्ड बैंक का ऐसे ही क्राइटेरिया होता है, 4 क्राइटेरिया होता है. लोअर इनकम, अपर इनकम, लोअर मिडिल इनकम, है ना, और हायर इनकम. हायर इनकम होता है, अपर मिडिल इनकम होता है, लोअर मिडिल इनकम होता है. हम लोग है ना, हम इंडिया लोअर मिडिल इनकम में आता है, लोअर मिडिल इनकम में आता है. 996. अच्छा ये भी बताना चाहता हूँ मैं, दिस वर्ल्ड बैंक इज कंसिडरिंग countries are rich or poor, they are calculating with the help of dollars. एक बार क्वेश्चन शायद पूछा था, why they are considering the dollar to count for counting the per capita income, why not rupees? So you have to give the answer. Dollar is an international currency, it is accepted by all the countries. Rupees is not accepted by all the countries as an international currency, right? That is the reason, simple. So US डॉलर में बोलेंगे, जो आपका हायर इनकम और मिडिल क्या बोलेंगे, आपका अपर मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम, हम लोग उन्होंने हमारे को लोअर मिडिल इनकम में कंसिडर किया गया है. मैं बताएंगे क्यों. जब यूएस डॉलर आपका 12616 से per annum है, ध्यान रखना, इस पे पर कैपिटा इनकम अगर आपको इससे ऊपर है तो ए, और इससे ऊपर 12616 से ऊपर है तो वो रिच कंट्री कहा जाएगा. और यूएस डॉलर 1035 से कम है तो उसको लो इनकम कंट्रीज बोला जाएगा, लो इनकम कंट्रीज. हमारा जो 2012 के अकॉर्डिंग, 2002 नहीं है, 2012 के अकॉर्डिंग हमारा जो इनकम है आपका 1530 यूएस डॉलर पर एनम में 1530 है. तो हम लोग लोअर में भी नहीं है, हम लोअर से ऊपर है, दैट मीन्स लोअर मिडिल में आता है इंडिया, राइट. और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होता है जो इससे आपको 996 है, 996 डॉलर से कम होता है, उसको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बोले. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मीन्स लोअर इनकम वाला, राइट. सूडान हो गया, मोज़ाम्बिक हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज, मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज आर लाइक दैट ओनली, मीन्स पुअर कंट्रीज, राइट. सो ये भी आपको पढ़ना है. तो इनमें से पढ़ने वाले काम कौन सी है, कंपेयरिंग द कंट्रीज. वर्ल्ड बैंक कैसे कंपेयर कर देते हैं, पर कैपिटल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट का नोशन, मतलब उस टाइम में कि हमें क्या सोचना है,
नेशनल डेवलपमेंट के टाइम में हमें प्रायोरिटी उसको देना है, किसको देना है, जिसको ज़्यादा बेनिफिट मिले, उसी का गोल की तरह हम मूव करना चाहिए। एग्जाम्पल, एक डैम बनाना है, बहुत सारे फार्मर्स बोलेंगे, आदिवासी बोले नहीं नहीं डैम नहीं चाहिए, डैम नहीं चाहिए। अगर आप 50 आदिवासी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन 5000 इंडस्ट्रीज के लिए सही हो रहा है और कंट्री का जो बहुत सारे सिटी के लिए सही हो रहा है, तो हम लोग डैम बनाएंगे, राइट। इसके लिए कुछ और क्राइटेरिया देखेंगे। दिस इज द फैक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड स्मॉल लेसन, राइट, स्मॉल टॉपिक में कोई जल्दी समझ में आ जाएगा, राइट। और इसके बाद अगला एक और टॉपिक है, उसके बाद फिर बोर्ड क्लास है, तो अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू। और अच्छी तरह समझ लेना, सुन लेना और रीड करना ज़रूरी है, राइट। थैंक यू।